Hello students, now I am starting exercise 13.2, chapter 13, surface areas and volumes. So in this exercise, first question is, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. तो height भी 1 centimeter हो जाएगा. Find the volume of the solid in terms of pi, means we have pi की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी है. क्या केस है, एक हेमिस्फीयर गिवन है and its radius is 1 centimeter. This one is 1 centimeter and there is a cone also with base radius same है, means इसी पे खड़ा है और उसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है. तो हमें एक कोन ड्रॉ करना है जिसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, मीन्स दिस वन इज 1 सेंटीमीटर. क्लियर. तो R और H दोनों की वैल्यू इसमें 1 है. R दोनों के लिए सेम है 1 सेंटीमीटर and H height of cone only, that is 1 centimeter, and we have to find the volume of the solid in terms of pi. So volume of the solid in terms of pi, so equals to, both volumes we have to add, volume of hemisphere plus volume of cone. वॉल्यूम्स के केस में हमें अगर ऐड किए गए दो शेप्स को तो सिंपल वॉल्यूम को प्लस करना है, और अगर एक शेप को निकाल लिया गया, उसमें शेप को निकाल लिया गया है तो वो माइनस कर देना है. बट हेमिस्फीयर उसमें सरफेस एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, बट इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला इज 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कॉमन भी ले सकते हैं या फिर एज इट इज जैसे, तो हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें ईजी होगा. 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ, और एक आर बच जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन है, प्लस 1/3 कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन, सो ओनली लेफ्ट एच. नाउ वी पुट द वैल्यूज. 1/3 पाई सेम रहेगा क्योंकि पाई के टर्म्स में हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. आर स्क्वायर, आर इज़ 1, सो 1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू आर दैट इज़ 1 प्लस एच दैट इज़ ऑल्सो 1. सो 1/3 पाई इंटू 1 into what is in bracket, 2 1 2 plus 1 that is 3, so 3 1 3, both are cancelled. Now what is left, only pi unit centimeter cube. That is first question. Now we start second question. Second question is, Russell, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends. By using a thin aluminum sheet, the diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. Clear? Total length is given 12 centimeter. So we are erasing it. Now we are drawing second diagram for second question. In this, two cones are there on a cylinder. So we draw first cylinder, and now both sides two cones. Clear? Same here, one cone. एंड टोटल मॉडल की हाइट गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर. दिस वन विद कोन, मीन्स कोन और सिलेंडर दोनों को मिला के टोटल हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर. एंड हाइट ऑफ कोन्स इज गिवन 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन. सेम, बोथ कोन्स आर सेम, सो इट्स ऑल्सो 2 सेंटीमीटर. क्लियर. एंड radius is not given but diameter is given, that is 3 centimeter for all, means radius will be half of it, that means 1.5 centimeter. Clear. Now so radius r दोनों तीनों शेप्स के लिए सेम है, so r equals to how much, 3 diameter, so 3/2, that means 1.5 centimeter. Now height of cylinder, firstly height of cone is given, so height of cone, that is we assume h1, so it is 2 centimeter. Now height of cylinder, that is we assume h2, so it will be 12 minus 2 and 2, so minus 2 plus 2, 2 plus 2 is 4, 12 minus 4 will be 8 centimeter. Now we have to find volume of air in the model. So volume of air in the model, that means we have to find volume of cones and cylinders, both volumes we have to add. So 2 cones हैं, so 2 into volume of cone, 1 cone का वॉल्यूम फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई बिकॉज बोथ आर सेम, एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ
cylinder. Volume of cylinder. Now use the formula for both. 2 into volume of cone, that is 1/3 pi r square h. कोन की हाइट हमने क्या एज्यूम किया हुआ है h1, तो इसे h1 पुट कर देते हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई r स्क्वायर h एंड हाइट ऑफ सिलेंडर वी एज्यूम h2, so it is h2. Now something is common here. Yes, pi r square is common, so we are taking pi r square common. What is left? 2/3 h1 plus what is left here? h2. Now putting the values, so pi 22/7, is it given 3.14? No, not given. We have to put 22/7. So 22/7 into r square, r is 1.5, 1.5 का स्क्वायर हो गया 2.25 into bracket 2/3 into h1 that is 2 centimeter plus h2 that is 8 centimeter. Now ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे. 22 को हम 2.25 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो 225 2 जा हो गया 450, 45 कैरी और 450 और 45 495. डेसिमल 2 डिजिट बिफोर अपॉन 7 इंटू एलसीएम ले लेंगे 3, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 8 जा 24, 24 एंड 4 28, सो 49.50. इसको हम 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं ना. चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे. 49.50 अपॉन 7 इंटू 24 4 28 अपॉन 3, 7 जा 7, 7 4 जा 28, 3 1 जा 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 1, 19, 3 6 जा 18, 1 इज लेफ्ट 15, 3 5 जा 15 0. सो 16.5 इंटू 4, 16 4 जा 64 और 4 हाफ 2 यानी कि 66 सेंटीमीटर क्यूब. दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर इन प्रेजेंट इन द मॉडल. Now we start third question. So question number 3 is a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. Okay, so third question. Here gulab jamun shape is given. वन सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फीयर एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे 2 हेमीस्फीयर. तो हम इसी डायग्राम को क्लियर कर ले रहे हैं. ठीक है, इसमें बस कोन की जगह पे हमें अब क्या ड्रॉ करना है? हेमीस्फीयर. ठीक है, तो कोन के प्लेस पे आप इसे हेमीस्फीयर ड्रॉ कर लीजिए. मीन्स जस्ट लाइक दिस, सेम हियर, दिस वन. क्लियर? This is hemisphere. This is gulab jamun shape. Now, what are the dimensions given? Dimensions are given. Total length is given of the gulab jamun is 5 centimeter. It is 5 centimeter. This one. This is 5 centimeter. Now, what is given here? Here it is given that diameter is 2.8 centimeter. Diameter 2.8 centimeter. This one. Now what is the radius? Radius is half of diameter. This one is r. तो r क्या होगा? रेडियस तीनों के लिए सेम होगा. सो रेडियस वी आर फाइंडिंग रेडियस इज 2.8 डायमीटर अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.4. सो इट इज़ 1.4 सेंटीमीटर. एंड हाइट ऑफ सिलेंडर वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर बिकॉज टोटल हाइट इज गिवन. सो हाइट ऑफ सिलेंडर वी फाउंड 5 टोटल हाइट है, उसमें से 1.4 रेडियस ही हो जाएगी. 1.4 रेडियस ही हो जाएगी. मीन्स इसकी हाइट जो रेडियस की इक्वल है हेमीस्फीयर की, दोनों माइनस हो जाएगा. तो 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, 1.4 और 1.4 मीन्स डायमीटर बन जाएगा 2.8. 5 में से 2.8 माइनस होगा, सो इट विल बी 2.2 सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ सो दिस हाइट इज 2.2 सेंटीमीटर. सिलेंडर की हाइट हो गई है. क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. सो वॉल्यूम ऑफ 1 gulab jamun, that is equals to volume of cylinder, one cylindrical shape है and 2 hemispheres है, 2 into volume of hemisphere. Clear? Now we have to use formula for both. So volume of cylinder that is pi r square h, r is same for both, h only cylindrical height, plus 2 into volume of hemisphere that is 2/3 pi r cube.
something is common. Yes, pi r square is common in both, so we can take common pi r square. So what is left? Pi r square is common. Here it is left h plus 2 to the 4 upon 3 and r. Now putting the values, pi value is 22 upon 7 upon r square. R is 1.4, its square 1.96, 14 का स्क्वायर 196, डेसिमल 2 डिजिट बिफोर, इंटू h is 2.2 प्लस 4 अपॉन 3 इंटू r is 1.4. नाउ 7 से डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल पहले है तो 0.7 टू जा 14, 5 56, 7 8 जा 56, 22 इंटू 28 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 28 टू जा 56, 5 कैरी, 56 और 5 61, डेसिमल 2 डिजिट बिफोर, इंटू वी आर टेकिंग एलसीएम दैट इज 3 टू जा 6, 6.6 हो गए, प्लस 4 इंटू 1.4 5.6, नाउ 6.16 और ये 12.2 हो गया, तो 6.16 और 12.2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना और 3 को डिवाइड में एज इट इज़ हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। जो 3 डिवाइड में है उसको हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें जो वॉल्यूम फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है? वॉल्यूम हमको फाइंड करना है 45 गुलाब जामुन का, तो वहाँ 45 से 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। इसलिए वहाँ पे हम इसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे, या आप इसे यहीं पे कैलकुलेशन छोड़ सकते हो, लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6.16 इंटू ये हो गया 12.2 अपॉन 3, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर ही ले रहा हूँ। 122 616 ना, तो 616 2 जा हो गया 1232 कैरी 123 और 1232 और 123, तो 1355 5 आ जाएगा यहाँ, 135 और 616 तो 7 और कितना था 35 नहीं 616 और 135 तो 751, डेसिमल 1 2 3 3 डिजिट बिफोर अपॉन 3, इसको हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, यहीं पे छोड़ रहे हैं। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। नाउ यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ हाउ मेनी गुलाब जामुन आर देयर? 45, so we have to multiply by 45 for this volume. So 45 gulab jamuns means 45 into 1 volume of 1 gulab jamun, that is 75.152 upon 3. 3 से 45 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 15। नाउ 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 2 30, 3 कैरी, 75 3 78, 7 कैरी, 15 और 7 22, 2 कैरी, 75 to 77, 7 कैरी, 105 और 7 112, और पॉइंट 3 डिजिट बिफोर, तो 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम फॉर sugar syrup in 45 gulab jamuns. So volume of sugar syrup in 45 गुलाब जामुन्स। तो शुगर सिरप जो है वो गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% क्वेश्चन में गिवन है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड 30% ऑफ दिस वॉल्यूम। सो 30% ऑफ 1127.280 नहीं लिख रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 30% मीन्स पर मीन्स डिवाइड, सेंट मीन्स 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 1127.28, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट बिफोर डेसिमल आ जाएगा, मीन्स 112.728। नाउ मल्टीप्लाई बाय 3, सो डायरेक्टली आई एम पुटिंग 3 8 जा 24, 2 कैरी, 6 2 8, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 6 और 2 8 और 11 3 जा 33। डेसिमल 2 डिजिट बिफोर एंड 10, so it is 3 digit before. So 338.184 centimeter cube, that is the volume of sugar syrup present in 45 gulab jamun. So it is question 3rd. Now move to next, that is question number 4. So 4th question is, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. You have to find volume of entire stand. wood जो है वो कितनी है वो हमें फाइंड करना है। तो जो wood का एक क्यूबाइडल स्टैंड है उसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं, मीन्स 4 कोन्स उसमें से निकाल लिए गए हैं और हमें फाइंड करना है उसमें वुड। तो वुड क्या कितनी प्रेजेंट होगी? जो क्यूबाइड का वॉल्यूम है वो टोटल वुड है,
और इसमें से जब 4 कोनिकल डिप्रेशन माइनस किए गए निकाले गए हैं तो उनका वॉल्यूम हमको माइनस करना होगा। क्लियर? सो फॉर दिस फर्स्टली वी ड्रॉ डायग्राम a cuboid which shape are given 15, 10 and 3.5. Length is 15, width is 10 and height is 3.5. So 15, 10 and 3.5. One cuboidal stand we are drawing just like this. One cuboid I am drawing, and this side I am drawing here. No, it is here. Okay. And this one is also. Now जो टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस पे 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाए गए हैं। 1, 2, 3, 4। मैंने भी सर्किल बना दिया, अब इसको कोन बना दिया शेप। तो ये कोन्स जो है निकाल दिए गए हैं, इनका वॉल्यूम हमें क्या करना है, माइनस करना है। इनकी डायमेंशंस गिवन है, और जो क्यूबाइड है उसकी डायमेंशंस गिवन है 15 सेंटीमीटर, एंड विड्थ इज गिवन 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर। एंड कोन की अलग है, वो इसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटा सा साइज़ है, या मेंशन कर दें कितना है। देखो साइज़ जो कोनिकल डिप्रेशंस है उनका रेडियस गिवन है 0.5 और डेप्थ गिवन है 1.4। तो रेडियस है 0.5, अगर हम एक को यहाँ मेंशन कर दें, दिस वन, दिस इज 0.5, और जो हाइट है दैट इज़ 1.4 सेंटीमीटर, दिस वन। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 4th, जिसकी डायमेंशन है इसको हम कैपिटल L, कैपिटल B और कैपिटल H एज्यूम कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ क्यूबाइड दैट इज़ L, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, B width that is 10 centimeter, and height that is 3.5 centimeter, and radius of cone small r we assume that is 0.5 centimeter it is given, and height of cone we assume small h that is 1.4 centimeter. Now we have to find volume of wood in the entire stand. So we have to subtract volume of 4 cones from volume of cuboid. So we are writing volume of cuboid minus 4 into volume of 1 cone, volume of 1 cone या conical depression. Clear? Now volume of cuboid that is LPH minus 4 cones हैं, तो 4 into volume of 1 cone that is 1/3 pi r square h. Now we are putting the values, nothing is common here. So L is 15 into B is 10 into H is 3.5 minus 4 into 1/3, so it is 4/3 pi 22/7, or it is given 3.14, not given 22/7 we have to put, into r square, r is 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, तो 0.25 इंटू h दैट इज़ 1.4। देखिए 1.4 तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7 और 7 2 14, तो 0.2 लिख सकते हैं हम इसे। क्लियर? नाउ 10 और 3.5 का मल्टीप्लाई हो गया 35, 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 5 75, 7 कैरी, 15 3 45 और 7 52, 525 हो गया, माइनस देखो 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 0.25 से करेंगे, 25 4 100 मीन्स 1 आ गया, 22 का मल्टीप्लाई 0.2 से 44 डेसिमल 1 डिजिट B4, सो 4.4/3, इसको माइनस डिवाइड कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो 525 माइनस 3 1 = 3, 1 इज़ लेफ्ट 14, 3 4 = 12, 2 इज़ लेफ्ट 20, 3 6 = 18, 6 6 आता रहेगा, तो हम इसे 7 लिखते रहें। ओके, राउंड ऑफ करके माइनस कर लेंगे, यहाँ पॉइंट आगे 0 बढ़ा लेंगे, तो 10 में 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, पॉइंट यहाँ 4 में 7 गया 3, 2 5 एज इट इज। सो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ क्वेश्चन 4th।